اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام نبی کریم پر جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہیں، اور سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر اور ان پر جو ان کی پیروی کریں گے قیامت کے دن تک۔ خوش آمدید میرے بچوں، اور آج ہم آپ سب کو ایک نیا سبق سکھانے والے ہیں جس سے آپ اچھا اخلاق سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجب الامر المومن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک العہد الا المؤمن ان اصابت سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضرا صبر فکان خیر اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ جلدی سے یہ کام ختم کرو اور کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بتاؤ اب میں تمہارا حکم کیوں مانوں؟ سمجھ نہیں آتا کپتان تمہیں ساتھ کیوں لائے ہیں، جبکہ میں ہوں ان کے ساتھ، تو تم جیسے پدو کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں یہاں صرف کھانا پکانے کے لیے لائے ہیں، سوچنے کا کام میرا ہے۔ فضول باتیں کرنا اور لڑنا بند کرو، ورنہ میں تم دونوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ تمہاری بے وقوفیوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ تم سب سے پہلے جا کر کھانے کا انتظام کرو، ہم پہلے ہی اپنا بہت وقت ضائع کر چکے، اور ابھی تو مجھے ان شیطان بچوں کو بھی پکڑنا ہے، اس کے بعد میں خود اس درخت کو کاٹنے جاؤں گا، اور آج مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں اس کی لکڑی سے ایک ایسا بحری بیڑا تیار کروں گا جسے دیکھ کر پوری دنیا مجھے مان جائے گی کہ میں سب سے بڑا۔ کپتان، آپ نے وہ خزانہ ڈھونڈ لیا جو آپ کے آباء و اجداد نہ ڈھونڈ سکے، آپ عظیم ہیں۔ ہاں، اب تم جاؤ اور ہمارے آرام کا بندوبست کرو۔ آپ ہم سے ان کاغذ کے ٹکڑوں کے ساتھ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پینٹنگ کی کلاس میں ہیں؟ مجھے یہ پسند ہے مجھے۔ کیا ہم کارٹون بنانے لگے ہیں؟ نہیں، تھوڑا صبر رکھو بچوں۔ ویسے ہم کیا کرنے والے ہیں دادا جان؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر صبرا جمیلا، صدق اللہ العظیم۔ صبر؟ جی ہاں، صبر خود پر قابو رکھنے کا نام ہے، اور فضل کے ساتھ صبر کرنے کا مطلب ہے کہ بغیر شکوے یا بے چینی کے صبر کرنا۔ اور صبر ہم انسانوں کی روزمرہ کی زندگی کا ایک ایسا اہم حصہ ہے جس کے بغیر ہماری زندگی بالکل نامکمل ہے۔ جلد بازی مت کرو احمد۔ کیا تم لوگوں نے سنا؟ صبر کرو جب تک میں وضاحت نہ کر لوں۔ کاش بلال بھی ہمارے ساتھ یہاں ہوتا تو وہ بھی اس کھیل میں شامل ہو جاتا، لیکن جلد بازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری جان، جب ہم جلد بازی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد کسی بھی کام کا نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم مشکل میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ یہ بالکل اس کے متضاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات پر بھی عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ہم کوئی غلطی کریں یا ناکام ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اہم بات یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا جائے اور اسے پورا کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جایا جائے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا ہے اور اپنے نیک بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بتاؤ بچوں۔ کیا؟
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में है, जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ, और जो मेरी तरफ चल के आए मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ, और जो शख्स मुझे एक बार पुकारे मैं उसे जवाब में 10 बार पुकारता हूँ। इसका क्या मतलब है दादा जान? क्या आप मुझे मौका देते हैं कि मैं इस सवाल का जवाब दूं? हाँ क्यों नहीं, तुम इसका जवाब दो। अगर कोई इबादत गुजार अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह अपने और उसके दरमियान का फासला खत्म कर देता है। अगर कोई एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। अगर कोई इंसान अल्लाह की तरफ चलता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की तरफ दौड़ता है, और इसीलिए हमें चाहिए कि उसकी तरफ दौड़ कर जाएं, ना कि चलते हुए जाएं। और ऐसा तब हो सकता है जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तालीमात पर अमल करें, और इस तरह हम बासानी खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से एक ये भी है कि सब्र करो। बहुत सा सब्र, बहुत सा। हाँ, और अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि हम सब मिलकर क्या खेलने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने और तुम्हारे दादा जान ने मिलकर पर्चियों के ऊपर कुछ सवालात लिखे हैं और उन्हें छोटी टोकरी में डाल दिया है, और फिर उस टोकरी में से तुम लोग एक एक पर्ची निकालोगे और जवाब दोगे। क्या बिलाल भी खेल सकता है? हमने उसके लिए भी एक सवाल रखा है, शायद वो भी आ जाए। अब ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? और मैं किसकी टीम में हूँ? किसकी टीम में? अब सब कुछ तैयार है मरियम। ये हमारे दिमाग के लिए मुकाबला और रूह के लिए ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा? इसका मतलब क्या है? हमारे जहनों को मश्क की जरूरत है, और रूह वो है जो अल्लाह ने हम इंसानों के अंदर डाली है। रूह भी हमारे अंदर हमारी परवरिश की तरह परवान चढ़ती है। हमारे अंदर की इंसानियत रूह की अच्छी परवरिश के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह के ज्यादा करीब रहें और अच्छी बातों को ज्यादा सोचें। इस तरह हमारा अल्लाह से ताल्लुक भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इंसान की अल्लाह ताला से दूरी रूह की खराब परवरिश है। क्या खराब परवरिश भी होती है? कोई भी ऐसी चीज जो हराम है हमारे लिए बुरी है, वो हमारी रूह को भी नुकसान पहुंचाती है। रूह को अल्लाह से मंसूब किया जाता है, जिसकी वजह से इंसान को आला मकाम और इज्जत मिलती है। रूह की नशोनुमा से इल्म में इजाफा होता है। इसके साथ साथ लोगों के दरमियान मोहब्बत और अच्छाई जन्म लेती है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी रूह की अच्छी परवरिश करें। मैं अब बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब एक कागज का टुकड़ा उठाएंगे और अपने सवाल का जवाब देंगे। तो बच्चों, ईशा की नमाज के बाद हम दोबारा इकट्ठे होंगे और देखेंगे कि जवाब किसका ठीक था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बयान कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया दादी जान। तुम्हें क्या मसला है मरियम? मैं बिलाल का इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ वो भी इस मुकाबले में हिस्सा ले। मेरा ख्याल है कि तुम इस कंपटीशन से भागना चाह रही हो। बिल्कुल भी नहीं, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है। मुझे तो अपने सवालों के जवाबात पहले ही आते हैं, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुमने ठीक कहा, मुझे जरा सोचने दो, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहती हूँ। दादी जान, सब्र वाले को अजर मिलता है। ये किसका सवाल है? बिलाल का। अगर वो भी हिस्सा लेगा तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा
वउलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्योंकि अल्लाह ताला ने रहमतों का वादा किया है और बख्शिश फरमाने का भी, और उनके साथ भी रहमत और बख्शिश का वादा फरमाया है जो अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। और अल्लाह ताला सब्र करने वाले इबादत गुजार लोगों का अजर 2 गुना कर देते हैं मरियम, वो अजर जो कभी भी खत्म नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरी हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालो, साबित कदम रहो और सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अपने सीधे हाथ से शुरू करेंगे और अल्लाह के नाम से। मूसा, पहले तुम्हारी बारी। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताना थे और इसका जवाब है फातिमा, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मुल कुलसूम। दादी जान ने कल मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, उनकी बेटियों और बेटों के और उनकी अज़वाज के नामों के बारे में बताया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश मूसा। अब तुम अपना सवाल बताओ अहमद। वो कौन सा ऐसा खाना है जो रसूल पाक ज्यादातर खाते थे? वाकई ये जवाब देने का अच्छा अंदाज था अहमद। आपके पूछने से पहले मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या यही वो दुआ थी जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ी थी जब वो मछली के पेट में थे? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानिक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। शाबाश मेरी बेटी। बताओ, क्या तुम्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया पता है? मेरी दादी जान ने मुझे सुनाई थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं कि ये किस नबी से मंसूब थी, क्योंकि मेरी दादी जान हर वक्त ही पढ़ा करती थी। ये अच्छी बात है मेरी बच्ची। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कौम की तरफ भेजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की दावत देते रहे, मगर लोगों ने उनका यकीन नहीं किया और ना ही उनकी बात मानी, बल्कि गुमराही के रास्ते पर ही चलते रहे और वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तकलीफें देते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन लोग तौहीन रिसालत करते रहे। उन्होंने 33 साल अपनी कौम की रहनुमाई की कि वो अल्लाह ही की इबादत करें, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने आपका साथ दिया। सिर्फ 2 आदमियों ने, वो भी पूरे 33 साल बाद? हाँ बिल्कुल मूसा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हुए और अल्लाह ताला को बताए बगैर वो नाराज होकर उस शहर से चले गए। वो लोगों के एक गिरोह के साथ एक कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती समंदर के दरमियान पहुंची तो समंदर में एक तूफान आ गया और बहुत बड़ी बड़ी लहरें कश्ती को हिलाने लगीं, यहाँ तक कि कश्ती डूबने वाली हो गई। कश्ती के लोगों ने कहा कि कश्ती में वजन ज्यादा हो गया है, हमें किसी एक शख्स को समंदर में फेंकना होगा। कुर्रा अंदाजी की गई तो कुर्रा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। लिहाजा उन्होंने 3 बार कुर्रा अंदाजी की तो तीनों बार ही कुर्रा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। इसके अलावा अब आपके पास कोई और चारा भी नहीं था और लोगों ने आपको समंदर में फेंक दिया। समंदर में गिरते ही अल्लाह के मौजज़े से एक बहुत बड़ी मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। समंदर में? समंदर में? हाँ बिल्कुल, समंदर में। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पुख्ता यकीन था कि अल्लाह उन्हें समंदर में डूबने से बचा लेगा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे तो उन्हें एक बहुत बड़ी व्हेल मछली ने निगल लिया था और जब वो मछली के पेट में थे तो उन्हें लगा कि जैसे वो मर चुके हैं। लेकिन वो मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहे और हर वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये ही मेरे सवाल का जवाब था। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट से बाहर निकाल दे। चुनाचे मछली ने आपको जमीन पर उगल दिया। अल्लाह ताला ने वहाँ कद्दू का एक दरख्त लगाया ताकि आप उसके साए में बैठें और उसका फल खा सके। अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया और आपको सेहतमंद कर दिया।
और उनको कौम की तरफ वापस लौटाया ताकि और इबादत गुजार ढूंढ सकें। ये कहानी वाकई बहुत खूबसूरत है दादा जान। ये एक मौजज़ा ही है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन तक एक मछली के पेट में रहे थे। अहमद बेटा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस किस्से में मौजज़े के साथ साथ एक सबक भी है, और वो ये है कि मोमिन को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हाँ वो कितनी ही तकलीफ या परेशानी में क्यों ना हो, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो। और इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजबल अमरिल मोमिन इन्ना अमराहु कुल्लुहु खैर वलैसा जाकिल अहदी इल्लल मोमिन इन्ना उसाबत सर्रा शकर फकाना खैरल्लाह व इन्ना असहाबतहु दर्रा सबर फकाना खैरल्लाह सदका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दादा जान, इसकी मजीद वजाहत कीजिए। मोमिन हमेशा अच्छे हालात में होता है, जब अच्छे हालात में होता है तो शुक्र करता है और बुरे हालात में सब्र करता है। आपका बहुत शुक्रिया दादा जान, आज से मैं हर मामले में सब्र करूंगी। हर सूरत-ए-हाल में, हर सूरत-ए-हाल में। तुम्हारे साथ मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। तो बताओ मरियम बेटा, आज का हमारा सबक क्या था? सब्र।